Hello students, good morning. This video lecture is in continuation to the last video lecture जिसका कि लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है in which we came to know about how people lived and survived. किस तरीके से पहले ancient times में लोग रहते थे और survive करते थे. What they ate, activities they did, ये सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. उसी के कंटिन्यूएशन में दिस वीडियो लेक्चर है, ये वीडियो लेक्चर है जिसमें वी विल बी टॉकिंग अबाउट द हैबिटेट. किस जगह पर रहते थे, किस तरह की साइट्स सिलेक्ट करते थे रहने के लिए, किस तरह के जगह को ढूंढते थे कि जहाँ पे वो सर्वाइव कर पाएँ. एग्जैक्टली वो क्या पैरामीटर्स देखते थे कि जगह में होने चाहिए सो दैट दे कैन सर्वाइव ऑन दैट प्लेस. Along with this, we will talk about how stone tools were made and how the discovery of fire was found out and what were the traces. So guys, please watch the video till the end. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स के लिए आपको अपडेटेड रहना ज़रूरी है. सो लेट्स स्टार्ट. This is our past part 4, choosing a place to live in, that is habitat. Water, stone, caves and habitation. Okay, archaeologists have found evidence of hunters and gatherers from some of the sites. Archaeologists को कुछ hunters और gatherers के evidences मिले थे कुछ sites से. Many sites were located near source of water such as rivers and lakes. So यहाँ से पहला रेलेवेशन ये होता है कि जो हंटर्स और गैदरर्स थे दे लिव्ड नियर द बैंक्स ऑफ रिवर्स एंड लेक्स बिकॉज दे नीडेड वाटर टू कल्टिवेट ग्रेन्स. वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे तो उसके लिए उन्हें पानी चाहिए होता था एंड वाटर इज़ फॉर यूज फॉर सर्वाइवेबिलिटी. थर्ड, people preferred availability of good quality stone. Why? Because they wanted to make stone tools. Without tools, they can't hunt animals. They can't, scrap the hides, that is the animal skin. So they wanted good quality stones. Factory sites are the places where stones were found and people made tools. दिस वॉज वॉट आई वॉज ट्राइंग टू टेल यू कि वो टूल्स बनाने के लिए फैक्ट्री साइट्स को, ऐसी साइट्स को ढूंढते थे जहाँ पे अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टोन्स अवेलेबल होंगे. What were found at these factories? By factories we mean sites. ये जो habitable sites थे इनमें exactly क्या होता था? So first point, block of stones, tools of stones that were made and some were discarded because they were not perfect. कुछ stones के blocks होते थे, कुछ tools भी मिलते थे जो कि perfect नहीं होते थे तो उनको लोग discard कर देते थे कि सही नहीं बने हैं तो they don't use that. Second point, habitation with factory sites. पीपल लिव्ड हियर फॉर लॉन्गर स्पेल्स ऑफ टाइम जहाँ पर उनको सर्वाइवेबिलिटी के साथ साथ स्टोन्स एंड वाटर भी मिलता था. दैट इज दे हैड अ प्लेस टू लिव, दे हैड गुड क्वालिटी स्टोन एंड दे हैड गुड अमाउंट ऑफ वाटर नियर बाय. तो इस तरह के जो साइट्स होते थे उनको हैबिटेशन विद फैक्ट्री साइट्स हम कहते थे. हैबिटेशन साइट्स आर द प्लेसेस वेयर देयर वर केव्स एंड रॉक शेल्टर्स. यहाँ पे नेचुरली केव्स और रॉक शेल्टर्स होते थे जहाँ पर लोग रह सकते थे. बट रहना वॉज नॉट द ओनली सिचुएशन. दे हैड टू अरेंज फूड. For food, they had to hunt animals, they had to make stone tools. And for stone tools, they need to have stone. And also to cultivate, they need water. So, जो इस तरह की फैक्ट्री साइट्स होते थे जहाँ पे हैबिटेशन और वाटर एंड स्टोन टूल्स तीनों एक साथ मिलता था, दे वर नोन एज हैबिटेशन विद फैक्ट्री साइट्स. थर्ड पॉइंट, पीपल चूज नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम रेन एंड विंड. People choose natural cave, that is the caves which were naturally found because they provided shelter from rain and wind. Obviously बारिश और हवा आंधी वगैरह में they used to stay in those caves. Now sites, places where the remains of things, that is tools and buildings were found, they are known as sites. Now they can be found on surface of the earth, buried under the earth and sometimes even underwater. So these sites can be found either on surface or buried or under the water. Making stone tools. Stone tools are made with two different techniques. So first technique is stone on stone. In this, it consisted of a pebble from which the tool was to be made, which was known as the core. मतलब
एक पेबल होता था जिसका हम टूल बनाएंगे, सो दैट वाज नोन एज द कोर, which was held in one hand, एक हाथ में उसको पकड़ा था. In another hand another stone was used which was used as a hammer. जैसे कि एक हाथ में हमने वो स्टोन पकड़ा जिसका हम टूल बनाएंगे, और दूसरे हाथ में हमने वो स्टोन पकड़ा जिसको हम एज अ हैमर यूज करेंगे उसको मारने के लिए. द सेकेंड टूल वॉज यूज टू स्ट्राइक ऑफ फ्लेक्स फ्रॉम द फर्स्ट टिल द रिक्वायर्ड शेप वॉज ऑब्टेन्ड. उसको एक पर्टिकुलर शेप देने के लिए हम हैमर स्टोन को से हैमर स्टोन यूज करके कोर पे तब तक मारते थे जब तक वो वाली शेप नहीं ले लेता. सो दिस इज द इमेज फॉर स्टोन ऑन स्टोन. यू कैन सी एक हाथ में इन्होंने कोर पकड़ रखा है, एंड सेकेंड हैंड ही इज यूजिंग अ हैमर, ही और शी, and this will be striked on this core in order to gain the desirable shape. Now second method, pressure flaking. प्रेशर फ्लेकिंग में क्या होता है, कोर वॉज प्लेस्ड ऑन अ फर्म सर्फेस. जैसा कि आप यहाँ इस इमेज में देख सकते हैं, ये जो है ये कोर है, ये एक स्ट्रॉन्ग सरफेस पे रखा गया है. एंड हैमर स्टोन, दैट इज दिस इज द हैमर स्टोन. हैमर स्टोन we used on a piece of bone or stone. This is the bone or a stone. Bone tools भी बनते थे इसलिए यहाँ पे इन्होंने bone भी यूज़ किया है. This is a hammer stone which is striked on this stone in order to get the desired flake. So this is called as pressure flaking. सिर्फ इतना सा डिफरेंस है स्टोन ऑन स्टोन में. नीचे बेस नहीं होता कोई, दो हाथ यूज़ करते हैं, एक हाथ में कोर पकड़ते हैं, एक हाथ में हैमर पकड़ते हैं, और इसमें हम कोर को एक स्ट्रॉन्ग बेस पे रख के उसको प्रेशर से फ्लेक्स निकालते हैं. दैट इज़ हाउ द टूल्स आर मेड बाय प्रेशर फ्लेकिंग. नाउ फाइंडिंग आउट अबाउट फायर. सो ट्रेसेस ऑफ एशेज वर फाउंड. पीपल वर फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर बिकॉज ऐश मिला था, एशेज के ट्रेस मिले थे, तो वी कैन कंक्लूड कि लोगों को फायर पता था क्या होता है. हाउ दे, वी विल टॉक अबाउट हाउ दे डिस्कवर्ड इट, बट दे यूज्ड इट. ओके, they used it for 3 different things: sources of light, to cook meat, to scare away animals. ये 3 ज़रूरत थी उनको, एंड ये तीन जो पर्पसेस थे वो फायर सर्व करता था. सो बेसिकली ट्रेसेस ऑफ ऐश वर फाउंड इन द केव्स लोकेटेड इन करनूल केव्स में ज़्यादातर ऐश के ट्रेसेस मिले थे. So a changing environment. So next video lecture would constitute of a scenario of changing environment that occurred and the impact it caused. It can be a climatic change or it can be any other change. So stay tuned to watch that what kind of changes occurred after this kind of environment. So guys, thank you. If you like my video, please like the button and please subscribe to my channel by clicking the bell icon to get updates for the next video lecture. Stay tuned for more such video lectures. We'll continue with changing environment in the next. Thank you.